آئندہ مالی سال کا بجٹ کچھ دیر میں پیش کیا جائے گا۔ سندھ کابینہ نے 30 کھرب روپے سے زائد کے بجٹ پروپوزل کی منظوری دے دی ہے۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کچھ دیر میں پیش کیا جائے گا۔ سندھ کابینہ نے 30 کھرب روپے سے زائد کے بجٹ پروپوزل کی منظوری دے دی ہے۔ جی ہاں، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کچھ دیر میں پیش کیا جائے گا۔ سندھ کابینہ نے 30 کھرب روپے سے زائد کے بجٹ پروپوزل کی منظوری دے دی۔ اسی پر تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عاجز جمالی۔ جی عاجز، اپڈیٹ کیجیے۔ جی دیکھیں، نئے مالی سال کا جو سندھ بجٹ ہے وہ 3056 ارب روپے پر مشتمل ہے۔ بجٹ اجلاس جو ہے سندھ اسمبلی میں ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ 4 بجے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سندھ بجٹ پیش کریں گے۔ سندھ کابینہ نے بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ 30 کھرب 56 ارب روپے کا بجٹ ہوگا۔ میں آپ کو تھوڑی دیر قبل محکمہ داخلہ اور دیگر محکموں کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ ابھی میں آپ کو محکمہ صحت کے کچھ منصوبوں کے بارے میں بتاؤں کہ محکمہ صحت کے 9 ورٹیکل پروگرامز کے لیے بجٹ میں 11 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ملیریا کنٹرول پروگرام کے لیے 41 کروڑ روپے نئے مالی سال کے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں۔ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے لیے 2 ارب 85 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈینگی کنٹرول پروگرام کے لیے 7 کروڑ 50 لاکھ روپے نئے مالی سال کے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں۔ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کے لیے 36 کروڑ 83 لاکھ روپے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں۔ سندھ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کے لیے 1 ارب 97 کروڑ روپے بجٹ میں رکھے گئے ہیں۔ ٹی بی کنٹرول پروگرام کے لیے 86 کروڑ روپے نئے مالی سال کے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں۔ اس طرح محکمہ تعلیم کا 400 ارب سے زائد کا بجٹ ہے، جس میں مختلف منصوبوں کے لیے رقم مختص کی گئی ہے۔ سندھ کے نئے مالی سال کے بجٹ میں سب سے جو اہم اعلان ہوگا وہ نئے مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا ہوگا۔ شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ 20% تک تنخواہیں ہوں گی، لیکن اب بجٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ بجٹ کا جو مجموعی حجم ہے، دیکھیں آپ، گزشتہ برس یعنی رواں مالی سال کا جو بجٹ تھا وہ 2200 ارب سے زائد کا تھا، اور جو نیا بجٹ ہے وہ 3000 ارب سے زائد کا ہے۔ 800-900 ارب کا رواں بجٹ سے اضافہ ہے بجٹ میں، جس کی ایک بنیادی وجہ جو تنخواہیں ہیں اور پینشن ہے اس میں اضافے کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 25% یا کہیں اس سے بھی زائد نئے مالی سال کے بجٹ میں تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ نئے مالی سال کے سندھ بجٹ میں جو ترقیاتی پروگرام ہے، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے 900 ارب سے زائد کا، اس میں نئی اسکیمیں نہیں رکھی گئی ہیں۔ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں نئی ترقیاتی اسکیمیں نہیں ہیں۔ آن گوئنگ اسکیموں کے لیے یہ پوری رقم رکھی گئی ہے۔ البتہ نئی اسکیمیں بجٹ میں اس طرح شامل ہیں کہ نئے اعلانات شامل ہیں۔ 100 یونٹ تک فری بجلی دینے کا اعلان بجٹ میں شامل ہے، جو دیگر ذرائع سے اس کی رقم میسر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سبسڈیز جو ہیں وہ بجٹ میں بڑھائی گئی ہیں۔ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، البتہ کینٹونمنٹس کے علاقوں میں پراپرٹی ٹیکس کی وصولی جو ہے وہ بجٹ میں شامل ہے۔ تو اس طرح نئے مالی سال کے بجٹ میں تقریباً ہر محکمے کا رواں مالی سال کے مقابلے میں رقم میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جی اچھا عاجز، یہ بھی بتائیے گا، نئے مالی سال کے بجٹ میں پولیس کے لیے 1 ارب 60 کروڑ روپے کی 404 گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی گئی ہے، اس پر کیا اپڈیٹس ہے؟ جی بالکل، ہاں، یہ خبر بھی ہم نے دی تھی کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں 1 ارب 60 کروڑ روپے کی 404 گاڑیاں خریدی جائیں گی، جس میں 216 4 ویل گاڑیاں ہیں، 188 جو ہے وہ موٹر سائیکلیں خریدی جائیں گی، جس کے لیے وزارت داخلہ نے سندھ حکومت کو گزارش کی تھی۔ بتایا جا رہا ہے نئی گاڑیوں میں 9 ٹویوٹا فارچونز گاڑیاں خریدی جائیں گی، 46 ریوو گاڑیاں ہیں، 12 بختربند گاڑیاں ہیں، 13 جیمرس اینڈ JSM لوکیٹر گاڑیاں ہیں، اور 16 موٹر کیٹ خریدنے کے لیے بھی بجٹ میں رقم مختص کی جا رہی ہے۔ یہ گاڑیاں صرف پولیس کے لیے نہیں ہیں، اس میں جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے
उसके लिए भी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो रवां माली साल में 1300 कैमरों की ख़रीदारी के लिए उसके लिए रकम रखी गई है। नए माली साल में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए अलहदा रकम रखी गई है, यानी आने वाले साल इन 1300 कैमरों के अलावा मज़ीद कैमरे ख़रीदे जाएंगे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए। जी अच्छा, जिस ज़राअत की बात कर लेते हैं, सिर्फ 4 अरब रुपए रखे गए हैं ज़राई तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से। हालांकि अगर देखा जाए ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, क्या वजूहात है कि इतना कम बजट रखा गया है? जी देखिए, यहाँ पे नए माली साल के बजट में ज़राअत के शोबे के लिए कुछ मंसूबे नए शुरू किए जा रहे हैं और उसके लिए भी रकम रखी गई है। ये जो आप जिस रकम का जिक्र कर रहे हैं ये सिर्फ शोबे ज़राअत है, लेकिन शोबे ज़राअत से कनेक्टेड दीगर इदारों के लिए कुछ मैं आपको बता दूं, बेनज़ीर हारी कार्ड शुरू किया जा रहा है। ये किसानों के लिए, किसान प्रोग्राम के लिए, इसके लिए 800 अरब रुपए बजट में मुख्तस किए जा रहे हैं। यानी ये नया मंसूबा है बेनज़ीर किसान कार्ड, जिसके लिए 8 अरब रुपए हैं। सैलाब की वजह से तबाहशुदा वाटर कोर्सेज जो हैं उनके लिए 1 अरब रुपए बजट में मुख्तस किए गए हैं। बेनज़ीर वुमेन एग्रीकल्चरल वर्कर्स प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। हालांकि कम रकम है बहुत, इसके लिए 50 करोड़ रुपए, लेकिन ये भी एक नई स्कीम है बेनज़ीर वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स। ये जो किसान औरतें हैं उनके लिए ये मंसूबा शुरू किया जा रहा है। हाईवेज़ के पुलों की मरम्मत के लिए 5 अरब रुपए नए माली साल के बजट में मुख्तस हैं। तो इस तरह अगर शोबा ज़राअत की कुल बजट को हम मिलाएंगे तो उसका हजम फिर बढ़ जाएगा। ये जो नई स्कीमें शामिल की जा रही हैं इनको भी बजट में शामिल किया गया है। जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से आप बात करें तो उस पर भी बताइएगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रकम है उसके हवाले से भी कुछ खबरें आ रही थी कि उसको भी शायद बढ़ाया जाए, तो इस पर भी कोई बातचीत हुई है? जी देखिए, ये जो सब्सिडीज़ के प्रोग्राम्स हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से शुरू किए जा रहे हैं। ये जो मैंने बेनज़ीर हारी कार्ड का जिक्र किया है या जो एग्रीकल्चर वुमेन प्रोग्राम का जिक्र किया है, इस तरह के कुछ और भी मंसूबे होंगे यकीनन नए माली साल के बजट में, जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद की जाएगी, जिसमें कुछ रकम जो है वो सिंध हुकूमत की होगी, कुछ रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि वफाकी प्रोजेक्ट है, एक वफाकी मंसूबा है, उससे भी कुछ रकम इन मंसूबों को फराहम की जाएगी। जो नए मंसूबे ख़ास तौर पे एग्रीकल्चरल सेक्टर के शुरू किए जा रहे हैं, ज़रई शोबे के जो नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी मदद हासिल होगी। जी ये बताइएगा आजिज़, हमारे आपके लिए यानी सहाफ़ियों के लिए भी कुछ रखा जा रहा है बजट में? जी देखिए, इसमें वर्कर्स के लिए तो एक मंसूबा है कि 37,000 रुपये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, कम से कम जो उजरत है सूबे में 37,000 रुपये मुकर्रर की जा रही है। 32,000 रुपये थी। इस तरह वर्कर्स के लिए 4,000 रुपये का समझें कि उसकी तनख्वाह में इजाफा है। हम और आपने बात की तो स्पेसिफिक मीडिया का जिक्र तो नहीं है और सूबाई बजट में उसका जिक्र हो भी नहीं सकता, ये वफाकी मामला होता है। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर बुनियादी तौर पे जब सरकारी तनख्वाहों में इजाफा होता है तो होता ही इसलिए है कि वेजेस को सामने रख के प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं। फिर उसी को ही मद्देनज़र रख के सरकार जब अपनी तनख्वाह में इजाफा करती है, उसको ही मद्देनज़र रख के प्राइवेट सेक्टर को अपनी तनख्वाहों में इजाफा करना चाहिए। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि प्राइवेट सेक्टर सरकार से मैच नहीं करती अपनी तनख्वाहों को। अगर उसूली तौर पर हुकूमत सिंध की तनख्वाहों में अगर या वफाक ने अगर 25% का इजाफा किया है तनख्वाहों में, तो प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा ही होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहों में कम से कम 25% का इजाफा होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल नहीं करता और ना सरकारी इदारे अपने रूल्स और रेगुलेशन पर अमल कराते हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं जिक्र करूँ, ये जो 37,000 रुपये
वर्कर्स के लिए रखे गए हैं कम से कम उजरत, इससे कबल 32,000 थी, लेकिन उस 32,000 पर भी अमल नहीं हो रहा था। ये अमल कराना किसकी ज़िम्मेदारी है, ये सबसे अहम बात होती है। सूबाई हुकूमत का जो महकमा लेबर होता है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो फैक्ट्रीज़ में जाकर चेक करे कि वर्कर को कम से कम जो उजरत है 32,000 या अब जो 37,000 हो रही है वो मिल भी रही है या नहीं। हमने बारहा इस बात की निशानदेही की कि कम से कम जो उजरत है वो भी वर्कर्स को नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, कम से कम उजरत भी वर्कर्स को नहीं मिल रही है। हमारे मुल्क का ये बेशक बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा ये बताइएगा आजिज़, बजट इजलास की कुछ बात कर लेते हैं। कितनी देर में बजट इजलास शुरू होगा? अरकान पहुंचना शुरू हुए हैं या नहीं? 3:30 हो रहे हैं। जी हाँ, सिंध असम्बली में कुछ अरकान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अरकान असम्बली आना शुरू हो गए हैं, लेकिन चूँकि बजट इजलास का वक्त जो है वो 4 बजे है, अब उसमें वक्त भी थोड़ा बचा है, तकरीबन आधा घंटा बचा है। अगर ये वक्त पर इजलास शुरू होगा तो इस वक्त तक अरकान असम्बली को आ जाना चाहिए, लेकिन अरकान आ रहे हैं। यहाँ हमने देखा है कि कुछ हुकूमती अरकान, कुछ ख़ास तौर पे जो अपोजिशन है MQM के अरकान यहाँ पर असम्बली में मौजूद हैं, लेकिन चूँकि 4 बजे का वक्त है तो कहा नहीं जा सकता। अरकान की आमद अभी भी हो रही है, तो 4 साढ़े 4 बजे तक शायद ये इजलास शुरू हो जाए। इसमें आज का जो सिंध असम्बली का एजेंडा है, अगर मैं आपको बता दूं कि एजेंडा में सिर्फ बजट ही पेश होना है। जो नॉर्मल एजेंडा होता है, वक्फे सवालात या डिफरेंट पॉइंट्स, वो एजेंडा का हिस्सा नहीं है। आज के एजेंडा में सिर्फ वज़ीर आला सिंध की तकरीर है, यानी नए माली साल की बजट और रवा माली साल का जो सप्लीमेंट्री बजट है ये पेश करेंगे। उसके बाद इजलास ख़त्म हो जाएगा। जी ठीक है, बजट पेश किया जाएगा जिसके बाद इजलास ख़त्म हो जाएगा। आजिज़ हमारे साथ मौजूद रहिए। अशरफ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अशरफ, आजिज़ से हम बजट के पॉइंट्स पर बात कर रहे थे, ज़राअत के हवाले से, कारोबार के हवाले से। ज़राअत के लिए भी काफ़ी कम बजट जो है वो रखा गया है। कारोबारी अफराद इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए जी, कराची की बात करें तो सिंध में सबसे बड़ा, बल्कि पूरे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, और ये तरसा हुआ है कि तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू होते हैं वो मुकम्मल नहीं होते। इस वक्त कराची पानी के लिए तरसा हुआ है। K4 मंसूबा जो है 2016 में शुरू हुआ था, हम 2024 में आ गए, अब तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है, और मंसूबा ताख़ीर होने की वजह से उसकी जो लागत है मुसलसल बढ़ती जा रही है। जैसे कि बजट में अभी हुआ है, सीमेंट पर जो टैक्स बढ़ा दिया गया है, आपकी 15% जो है करिए पे जो टैक्स लगा दिया गया है, तो उससे लागत मजीद बढ़ रही है। अब जैसे K4 मंसूबा है वो 20 अरब रुपए का मंसूबा था, बढ़ते बढ़ते 70 अरब का हुआ, फिर 120 अरब का, 170 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है जो कि मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। और K4 मंसूबा कराची का जो पानी की बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए 165 करोड़ गैलन पानी इसके सिस्टम से फराहम होना है कराची को। इस वक्त कराची को 50 करोड़ गैलन पानी मिल रहा है। 50% खाना, कराची की आबादी मुसलसल बढ़ती जा रही है। मरदम शुमारी के हिसाब से 2 करोड़ की आबादी का शहर है। और सबसे अहम सलाम तरक्याती प्रोग्राम की बात करें सिंध की, तो कोई नया मंसूबा नहीं है। और जो सिंध हुकूमत ने ये प्लान किया है कि जो जारी मंसूबा है उसको आसमी शक्ल दी जाएगी। और गुज़िश्ता अगर हम देख रहे हैं कि 10 साल से कोई मंसूबा जो बड़ा मंसूबा मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे अहम जो ग्रेटर S3 जो वाटर सिविक लाइन को ट्रीट करके समुद्र में डालना था, लियारी के पास, हर कोई शहरी को पता है, वो गुज़िश्ता 10 साल से वो प्रोजेक्ट जो है सिर्फ पेपरों में देखा जाता है। बजट में मैं 2007 से देख रहा हूँ उसको, और यहाँ पे वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहा है। जो K4 मंसूबा 2016 में शुरू हुआ था, 2024 में हम खड़े हुए, 2024 में आपको एक और बजट हम देने जा रहे हैं। K4 मंसूबा शुरू नहीं हो रहा है। सड़कों की तामीर की बात करें, मरम्मत की बात करें, तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये बल्दियात का काम है या KMC का काम है। तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो पूरे सिंध का बजट देती है, सलाह तरक्याती प्लान देती है। 950 अरब अगर आप खर्च करने जा रहे हैं तो जो शहर कमाता देता है, और ये मैं नहीं, मतलब जो बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि कराची से 60% एक्सपोर्ट होती है, मुल्क की टोटल जो एक्सपोर्ट होती है, आपको रेवेन्यू के मध्य 55% कमा कर देता है उस शहर में। आप अगर तरक्याती प्रोजेक्ट का देखें तो इसके शहर से बाकी परेशान है। सिर्फ एक रेड लाइन मंसूबे की बात करूँ तो रेड लाइन मंसूबा जो पिछले 1.5 साल से बंद हुआ है, निगरान हुकूमत आई, उसने रुके हुए प्रोजेक्ट को मजीद रोक दिया, उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। अब आप सोचें वो 1.5 साल से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसका पूरा से लेके पूरी यूनिवर्सिटी रोड खोद कर आपने ग्रीन लाइन से मिला रहे हैं, और कराची के शहरी
जो यूनिवर्सिटी रोड पे आते हैं, सर्विस लाइन पे जाके जाते हैं, अगर इन तमाम जो लोग इस प्रोजेक्ट के सामने उनको रोज इस रोड से गुजारा जाए तो उनको लग पता जाएगा शहरी की अजियत है। इसी तरीके से पानी का मसला है, इस वक्त आप किसी भी इलाके में चले जाएं, जो पोश इलाका है वो पानी मिलने से परेशान है। जो 5 किलोमीटर की बात है, पानी खरीद के तो मिल जाता है लेकिन पानी लाइनों में नहीं मिलता है। इस वक्त गरीब आदमी शदीद परेशान है। जी बिल्कुल, गरीब आदमी तो अशरफ हमेशा से परेशान है। एक और सवाल सामने है, सिंध बजट में कर्ज पर सूद की अदायगी की मद में 9 अरब 77 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि दिफा और सर्विसेज के लिए 2 अरब 12 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए जैसे इनके बजट के डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ रहे हैं तो जो अखराजात होते हैं उसको भी देखना पड़ता है। और यहाँ पे जो बजट में जो चीजें आ रही हैं तो सिंध हुकूमत जो है जो पूजे में एक्सपेक्टेड कर रही है, जैसे कि मैं बताऊं जो पेपर सामने माँ का पेमेंट जो कर्ज लिया हुआ सूद की मद में जो अदायगी है 9 अरब 77 करोड़ 50 लाख रुपए की अदायगी के लिए मुख्तस किए गए हैं। पेंशन की मद में जो है 1 अरब 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके अंदर हम बात करें जो सर्विसेज लेते हैं मिलिट्री की और सिविल की तो उसके लिए भी रकम जो है 2 अरब 12 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिसमें कहा गया है कि जो हमारे सीनियर रिपोर्टर उन्होंने कंफर्म किया है कि जो रेंजर्स की सहूलत हम लेते हैं तो पिछले साल 1 अरब 85 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब रेंजर्स के ऊपर 2 अरब 12 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जो उनकी सर्विसेज ली जाएगी, उनकी खिदमात जो ली जाएगी। सब्सिडी की मद में जो है सिंध हुकूमत ने नए माली साल के बजट में 1 अरब 3634 लाख रुपए। ठीक है अशरफ खान और आजिज जमाली, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सिंध हुकूमत आज 30 खरब से जायद का बजट पेश करेगी। बजट तकरीर सुनने के लिए नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत आज बजट पेश करने जा रही है और तमाम ही लोगों को बजट का इंतज़ार है। 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आप बताइएगा, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर आप मौजूद हैं, क्या तवक्कुआत हैं यहाँ पर सरमायादारों की, ताजरों की बजट से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत के बजट के बाद आज सिंध हुकूमत जो है वो नए माली साल का बजट पेश करेगी, जिसका हजम जो है वो 33 खरब से ज़ायद का ये बजट होगा। अगर हम बात करें इसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से 953 अरब 9 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरीके से सिंध के बजट में तकरीबन 4644 जारी मंसूबे के लिए 49 करोड़ 30 लाख से ज़ायद रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की गई है। गैर मुल्की इमदाद की जो मंसूबे हैं उसके लिए 334 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। विफाकी PSDP से 76 अरब 97 करोड़ रुपये जो है वो मुख्तस किए गए हैं। सिंध के अजला के तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 55 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम जो उनके लिए 493 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए। और इसी हवाले से अगर हम बात करें बजट स्पीच के हवाले से तो पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि नॉर्थ कराची एसोसिएशन, जो कि पहली एक एसोसिएशन है जिसने सूबाई बजट को सुनने के हवाले से खुसूसी तौर पर यहाँ पर अरेंजमेंट किया है। यहाँ पर जो अरकान हैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन के, उनकी जानिब से एक कमरा मुख्तस किया गया है जहाँ पर जो अरकान है, सनतकार हैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन के, वो बैठ के जो सूबाई बजट है उसको सुनेंगे और उसके बाद अपनी राय देंगे। इसके साथ साथ बात करें जो वफाकी हुकूमत का बजट आया था उसके हवाले से जो कराची के सनतकार हैं उनमें मायूसी जो है वो सामने आई है। जो ताजिर बरादरी है उन्होंने भी जो है वो ना सिर्फ इस बजट को मुसरत किया है बल्कि हुकूमत पर तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ एदाद शुमार और मुख्तलिफ अल्फाजों का जो एक जाल है उसके ज़रिए से टैक्सेस में कहीं पे रिलीफ की बात की गई है तो कहीं पे टैक्स ज़्यादा लगाया गया है। बिलखुसूस जो ज़्यादातर सूरत सामने आई है वो नॉन फाइलर के साथ साथ वो जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्स की शरह में इजाफे की बात सामने आई है। और मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ जो अशिया हैं उस पर टैक्स के हवाले से और ड्यूटीज़ के हवाले से बात सामने आई। तो इस हवाले से जो सनतकार हैं और बिलखुसूस जो ताजिर बरादरी हैं वो भी मायूस है। जो नॉर्थ कराची उनकी जो सनतकार हैं उनसे हमारी बात, उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत ने तो बजट पेश किया
किया जिससे मायूसी हुई है। लेकिन अब देखना ये है कि बजट वो जो हुकूमत सिंध पेश करेगी वो सुनेंगे और उसके बाद फिर अपनी राय जो है वो देंगी। ताहम जो कराची के सनतकार हैं, बिल्कुल नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के जो सदर हैं और जो अरकान हैं, उनसे हमारी बात होती रही है। उन्होंने हमेशा जो है वो इस जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली का जो है वो शिकवा किया है। यहाँ पर जो एफिलेंट प्लांट है उसके फाल ना होने का जो है शिकवा किया गया है। और उसके साथ साथ जो यूटिलिटीज़ हैं, बिलखुसूस अगर हम बात करें बिजली और गैस के टैरिफ के हवाले से और बिजली और गैस की अवेलेबिलिटी के हवाले से, तो उसके हवाले से भी जो यहाँ पर सनतकार हैं, अरकान हैं, नॉर्थ कराची एसोसिएशन के सदर हैं, वो शिकवा करते रहे। अब देखना यह है कि इस बजट में जो कि सूबाई बजट होगा जो कि हुकूमत सिंध पेश करने जा रही है अब से कुछ देर बाद, उसमें क्या रिलीफ मिलता है। उसी के बाद फिर यहाँ के जो अरकान हैं, सनतकार जो प्रेसिडेंट हैं, वो फिर अपनी राय दे सकेंगे। जी ठीक है, रिलीफ मिलता है या नहीं। टैक्सेस की बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, कोई नया टैक्स तो नहीं लगने जा रहा, यही सुन रहे हैं। पुराने टैक्सेस की शरह में इजाफा हो रहा है, किस टैक्स की शरह में कितना इजाफा होगा? जी देखें, जो बजट के अब तक मंदरजात सामने आए हैं उसमें एक तो प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा हो रहा है और कैंटोनमेंट्स के इलाकों में नया प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सब्सिडीज़ में भी इजाफा किया जा रहा है। ख़ास तौर पे पीपल्स बस की सब्सिडीज़ के लिए बजट में रकम रखी गई है। चूँकि पीपल्स बस का किराया 50 रुपये है और ये बहुत सस्ता किराया है, तो वो जो सब्सिडी है वो सिंध हुकूमत इस मद में अदा करती है। तो ये पीपल्स बस की सब्सिडी को बरकरार रखा गया है। जहाँ तक बात है नए टैक्सेस की, तो ज़राए कह रहे हैं कि जो जिन महकमों पे हुकूमत सिंध का GST टैक्स लगा हुआ है वो तो सिंध हुकूमत वसूल करेगी, अलबत्ता उसमें कोई इजाफा नहीं है। अलबत्ता कुछ ऐसे टैक्सेस हैं छोटे मोटे जो शायद बल्दियात के कुछ शोबों पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बिल बोर्ड्स पर टैक्सेस लगाए जाए, जो हालांकि बल्दियाती इदारों का दायरा कार है, लेकिन इसकी गाइडलाइन सिंध हुकूमत तय करती है। तो इस तरह कुछ दीगर इदारों पर टैक्सेस की बात हो रही है, लेकिन चूँकि बजट दस्तावेज़ात में अब तक ऐसी बात शामिल नहीं है। सिर्फ ये शामिल है कि कुछ टैक्सेस की शरह में इजाफा किया जा रहा है। अच्छा, आज सोलर पैनल्स की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कहीं पर ये मामलात सामने आ रहे हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी आयद किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है इससे इनकम हसूल का विफाक की तरफ से अगर बात की जाए तो वो इनकम के चक्कर में है। और सिंध से हम ये सुन रहे हैं कि सब्सिडी दी जाएगी सोलर पैनल्स पर और इसी सोलर पैनल्स के ज़रिए गरीबों को जो है वो बिजली भी मुफ्त दी जाएगी, 100 यूनिट तक, 200 यूनिट तक। इसको थोड़ा सा क्लियर करें। जी बिल्कुल, नए माली साल के बजट में आज ये ऐलान किया जा रहा है कि सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरीब अफराद को 100 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। ये नए माली साल के बजट में ऐलान शामिल है और अब ये बिजली जो है ये सोलर से पैदा की जाएगी, सोलर से पैदा करके नेशनल ग्रिड में शामिल की जाएगी और फिर उसके बदले बिजली जो है गरीबों को दी जाएगी। इब्तदाई मरहले में 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले गरीबों को ये सहूलत दी जाएगी, लेकिन आगे चल के दूसरे मरहले में 200 यूनिट और फिर अल्टीमेटली 300 यूनिट तक इसको ले जाना है रवां साल में। चूँकि वज़ीर आला सिंध ने जो सिंध काबीना का इजलास था उसमें वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि नए माली साल का बजट पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो 10 नुकाती एजेंडा था इलेक्शन में जो उन्होंने दिया था, जो 10 नुकाती प्लान था, उन्हीं 10 नुकात के मुताबिक सिंध बजट बनाया जा रहा है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के उन 10 नुकात में ये एक अहम नुक्ता था 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करना। तो ये 100 यूनिट से इसका स्टार्ट ले रही है सिंध हुकूमत और रवां साल में एक प्रोजेक्ट किंजर झील पे गुज़िश्ता रोज़ उसका ऐलान किया कि सूबाई वज़ीर तवानाई ने ऐलान किया कि एक प्रोजेक्ट किंजर झील पे लगाया जा रहा है जिससे बिजली हासिल की जाएगी और फिर वो बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की जाएगी। तो एक तो ये है। दूसरा, ख़ुद सिंध हुकूमत ने ये भी ऐलान कर रखा है, इसका बजट में मुझे कहीं जिक्र नहीं मिला, मुमकिन है कि हो भी सही, कि सिंध हुकूमत मुफ्त सोलर प्लेट्स फराहम करेगी, सोलर पैनल्स फराहम करेगी। अब उसका तरीक़ेकार क्या होगा वो बजट तकरीर के बाद ही हम बोल सकेंगे,
لیکن سندھ حکومت کا یہ واضح فیصلہ ہے کہ سولر پر لوگوں کو سہولیات دی جائیں گی، سولر پینل پر سہولیات دی جائیں گی اور سولر سے حاصل ہونے والی مفت بجلی شہریوں کو دی جائے گی، جس میں کراچی بھی شامل ہے۔ تو یہ سندھ حکومت کا ایک اعلان ہے، اب اسی اعلان کو سندھ بجٹ میں بھی شامل کیا جا رہا، تو یقیناً اس سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ سندھ حکومت یقیناً سولر کے مد میں کافی نئے منصوبے لا رہی ہے اور عوام کو کچھ سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہے۔ اور عوام کو کچھ سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہے۔ عاجز جمالی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ سندھ اسمبلی میں بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ اراکین کے لیے بجٹ اجلاس کے دوران ہائی ٹی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسمبلی کے احاطے میں مزیدار پکوانوں کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ مزید جانتے ہیں طاہا ملک سے۔ جی طاہا۔ جی بالکل، دیکھیں آج جو ہے سندھ اسمبلی کے اندر بجٹ پیش کیا جائے گا 2024 اور 2025 کے لیے۔ بجٹ پیش کرنے سے قبل جو ہے ممبران کے آنے سے بھی پہلے جو ہے اس کی تیاریاں جو ہے وہ یہاں پر مکمل کی جا رہی ہیں۔ ممبران کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے بھی اور لنچ ٹائم میں جو ہے مزیدار پکوان بنانے کے لیے یہاں پر تیاریاں جاری ہیں۔ یہاں پر میرے ساتھ یہاں پر جو ادھر انچارج موجود ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ سر جی مجھے بتائیے گا کہ کیا تیاریاں ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ پکوان بنائے جا رہے ہیں ممبران کے لیے؟ سیلڈ ہے، چکن سیزر سیلڈ ہے، کلب سینڈوچ ہے، پیزا ہے، 3 قسم کے پیزا ہیں اور گرل چیز سینڈوچ ہے، منی برگر ہے۔ بتائیے گا کہ ابھی کہاں تک تیاری پہنچ گئی ہے اور کتنے دیر میں تیاری مکمل ہو جائے گی؟ ہم آلموسٹ ڈن ہے ہماری طرف سے، تو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر ہم تیار ہیں۔ بالکل، یہاں پر جو ہے انجاز کا کہنا تھا کہ مختلف قسم کے پکوان جو ہیں بنائے جا رہے ہیں۔ میں اپنے کیمرہ مین سے درخواست کروں گا کہ میرے پس منظر میں دکھائیں کہ یہاں پر جو ہے مزے کے پکوان کی جو تیاریاں ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ اس وقت مختلف قسم کے سیلڈ جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں، جبکہ فرائی آئٹم جو ہیں وہ بھی کڑھائی میں جو ہے وہ تلے جا رہے ہیں، ان کو فرائی کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں پر ہمیں کافی بھی جو ہے وہ بھی لگی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی کہ ممبران اسمبلی کے لیے جو ہے مختلف قسم کے مزیدار پکوان یہاں پر تیار کرنے کا جو عمل ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ جب بجٹ اجلاس کا بریک ہوگا وزیر اعلیٰ کا، تو بریک کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ان کو پیش کی جائیں گی تاکہ وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں اور پھر ریلیکس ہونے کے بعد دوبارہ سے بجٹ اجلاس کے اندر اپنی شرکت کو ممکن بنائیں۔ بہت شکریہ طاہا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ پکوانوں کی تیاری جو ہے وہ تو مکمل ہو رہی ہے، لیکن اگر سڑکوں کی تیاری کی بات کی جائے تو کراچی کی تقریباً ہر سڑک ایسی ہے جس کی حالت ناگفتہ بے ہے، جو انتظامیہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وسیم سے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ وسیم، آپ رپورٹ کرتے رہتے ہیں سڑکوں کی حالات کے حوالے سے، ویسے تو یہ بلدیات کا مسئلہ ہے، لیکن اس حوالے سے سندھ اسمبلی میں آج بجٹ میں کوئی بات چیت ہونی ہے؟ آج بالکل اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے ساتھ موجود ہیں نکاٹی کے پریزیڈنٹ فیصل موئز۔ ان سے جانتے ہیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ صنعت کاروں کو جو ڈیلیوری ہوتی ہے، مال کی آرڈر کی ڈیلیوری ہوتی ہے، اس میں شدید پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ انفراسٹرکچر تباہ ہے، خستہ حال روڈ ہے، پانی کی قلت کے مسائل رہے۔ نکاٹی ہمیشہ جو ہے وہ آواز اٹھاتی رہی ہے، یہاں پر ایفیشینٹ پلانٹ جو ہے اس کا مسئلہ رہا ہے۔ تو اب کیا سے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو، وفاقی جو بجٹ پیش ہوا تھا اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آج صوبائی حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، اس پہ آپ کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وزراء آئے ہیں، آپ نے ان کو پھول دیا ہے، اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو کیا آپ پھول کے بجائے گملہ دیں گے؟ دیکھیں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی بجٹ جو پیش ہوا ہے اس سے تو تمام جو بزنس کمیونٹی ہے، صنعت کار ہے، وہ ٹوٹلی مایوس ہیں، اس لیے کہ ہم جو امید لگا رہے تھے کہ جو باتیں چل رہی تھی، SIFC کے پروجیکٹ آ رہے تھے، جو چیزیں آ رہی تھی کہ کسی طرح بھی سبسڈیز اور اپنا بہت سارے یعنی فوائد ملیں گے انڈسٹری کو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اس بجٹ میں، اور اس بجٹ میں ہم بہت ہی مایوس رہے۔ آپ کو حالات پتہ ہے کہ اس وقت جو ایکسپورٹ کا حال ہے، یہ جو آپ نکاٹی میں کھڑے، یہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ایریا ہے، 70% انڈسٹری جو ہے یہاں سے ایکسپورٹ کرتی ہے۔ ایکسپورٹ واحد ذریعہ ہے فورن ایکسچینج لانے کا اس ملک میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس انڈسٹری کو اگر فلرش کریں گے تو ملک کی جو اپنا ریزروز ہے وہ مضبوط ہوگی، فورن ایکسچینج جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ صوبائی بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا، تھوڑا سا آپ کو صوبائی بجٹ میں بات کروں کہ انفراسٹرکچر اس وقت جو ہے ٹوٹلی تباہ ہے انڈسٹریل زونز کا۔ اس وقت ہم اپنے بائر کو، جو پہلے ہم سے دبئی میں ملتا تھا، لا اینڈ آرڈر کچھ بہتر ہوا تو وہ پاکستان آنے کی بات کرتا ہے، یورپ کا بائر، امریکہ کا بائر، لیکن اس کو ہوٹل سے یہاں تک لانے میں ہم روڈوں پہ لا نہیں سکتے۔ کراچی شہر کا یہ حال ہے۔ میں صوبائی بجٹ میں یہی بولوں گا بلاول بھٹو، زرداری صاحب یا CM صاحب سے کہ کراچی وہ واحد جو یعنی شہر ہے
जो पाकिस्तान का 68% रेवेन्यू पे करता है, जो सूबे को 90% रेवेन्यू देता है, पूरे मुल्क की 54% एक्सपोर्ट का हिस्सा जो है कराची की तरफ से है। इस शहर को निगलेक्ट ना किया जाए। इस सूबे के अंदर यही शहर है जो इस सूबे को भी पाल रहा है और इस मुल्क को भी पाल रहा है, पाकिस्तान को। मैं सही बात बताऊं, 3 करोड़ की आबादी के इस शहर में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। इस वक्त हालात बहुत अबतर है इंडस्ट्री के। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आज के बजट में कोई ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएं इंडस्ट्री को, खास तौर पे सिंध की और कराची की इंडस्ट्री को, कि इंडस्ट्री फ्लरिश करे। ये सूबा चलता ही कराची की इंडस्ट्री पे है। तो आज सूबाई हुकूमत को बिल्कुल चाहिए कि वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे रखे। इसके अलावा और भी जितने मामलात हैं हमारे, जो हम वन विंडो ऑपरेशन की बात करते हैं, जितने टैक्सेशन का निज़ाम है सिंध गवर्नमेंट का, इनको वन विंडो ऑपरेशन पे जाना पड़ेगा, वरना इंडस्ट्रियलिस्ट सुबह से अपनी फैक्ट्री में बैठता है और बैठ के जो है वो 48 एजेंसियां फेडरल और प्रोविंशियल को पेश करता है। दिस इज नॉट द राइट वे टू रन द कंट्री। वी आर टेलिंग, हम बिल्कुल वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों से मुतालबा करते हैं कि आप इस वक्त इंडस्ट्री को चलाना है, इस मुल्क को चलाना है, तो आज जो वफाकी बजट है उसके अंदर भी तब्दीली लाई जाए और जो आज सूबाई बजट पेश हो रहा है उसको जो है बिल्कुल इंडस्ट्रियल दोस्त बजट, सनतकार दोस्त बजट दिया। अच्छा, पानी का मंसूबा है K4, वो मुकम्मल नहीं हो सका, 10 साल उसमें रह गए। मंसूबा चल रहा है K3 मंसूबा जो है मुकम्मल नहीं हो सका पानी के हवाले से। पानी की किल्लत के हवाले से सनतकार कितनी परेशान है, इसके ये भी बताइएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड तबाह है, हमने सीवरेज का निज़ाम देखा है वो तबाह है, उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्रीज कितनी हद तक सफर कर रही है? सर देखिए, मसला ये है, पानी के बारे में आपने बात की K4 की। K4 तो हम आज से 10 साल पहले भी सुनते थे कि K4 बन रहा है। पहले वो जितना MGD का प्रोजेक्ट था उससे आधा हो गया, उसके बाद भी K4 पे कोई अमल नहीं हो रहा। पानी की ये सिचुएशन है कि इंडस्ट्री की बेसिक नेसेसिटी है पानी। इस वक्त जो रॉ मटेरियल है जो वो है वो पानी है। पानी के बगैर इंडस्ट्री चल नहीं सकती। मेरा कहना यह है आपको कि इस वक्त जिस तरह से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं पानी के खिलाफ और जिस तरह इंडस्ट्रियल कनेक्शंस को काटा जा रहा है, हमारे पास वाहिद रिसोर्स है। भाई आप हमें पानी दे दो, हमें किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है, सबसॉइल वाटर लेने की जरूरत ही नहीं है। वाटर बोर्ड पानी देते, हम पैसे देने को तैयार है। टैंकर माफिया छाई हुई है। ड्रिंकिंग वाटर जो है इंडस्ट्री के लिए, लेबर के लिए नहीं है। और टैंकर खरीदने जाओ तो 15-15 हज़ार रुपए का टैंकर जो है वो एक फैक्ट्री पे डलता है। तो सर कोई निज़ाम, कोई सिस्टम होता है। हमने DG रेंजर्स साहब से भी बोला है, हमने सबसे बोला है कि इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी जाए। देखें, ये वो जगह है जहां हम जॉब्स देते हैं लोगों को, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होता है। जब लोग नौकरी पे लगते हैं तो क्राइम की तरफ कम जाते हैं। मसला ये है कि आज अगर हमारे पास पानी, बिजली, गैस नहीं होगी, हम इंडस्ट्री बंद कर देंगे तो हम लोगों को जॉब्स नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि होश के नाखून ले हुक्मरान। आज बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें हमें सप्लाई की जाए। इस वक्त 30 से 40% इंडस्ट्री साइट में पानी की वजह से बंद है। नॉर्थ कराची में 10 to 15% बंद है इंडस्ट्री। इसी तरह तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स का हाल है। मैं MD वाटर बोर्ड से मुतालबा करता हूं, जो उन्होंने बोला था कि फोकल पर्सन गवर्नमेंट के रेट्स में टैंकर्स जो है इंडस्ट्रीज को मिलेंगे, आज तक वो फोकल पर्सन अपॉइंट नहीं हुए। MD वाटर बोर्ड फौरी तौर पर ये अपॉइंटमेंट्स कर। आखिरी सवाल, बिल्कुल नोटिस लिया जाए। और इंडस्ट्री कई फीसद तक बंद है कराची में सिर्फ पानी की किल्लत की वजह से। ठीक है वसीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। आजिज भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहें। सिंध असम्बली में आज बजट पेश किया जा रहा है। कैसा होगा बजट 2024 और 25? अरकान असम्बली ने हमारे नुमाइंदे से बात की है, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का ये बजट है तो इसलिए अवामी बजट होगा। कोशिश की है सिंध गवर्नमेंट ने जितने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें, आवाम को जो रिलीफ दे सकें वो करेंगे। जैसे बिजली का है, सोलर प्रोग्राम की तरफ जो हमारे मंशूर का हिस्सा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब का, तो उस पे काम होगा। तनख्वाहें बढ़ेंगी डेफिनेटली। और बाकी भी चीज़ों में मेरा सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा है, फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबा है, हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है प्राइस कंट्रोल पे।
اور اس کے لیے ہمیں لا میکنگ کرنی چاہیے اور ان کمیٹیز کو فعال کرنا چاہیے. جی بالکل سندھ کا بجٹ عوام دوست ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی عوام دوست جماعت ہے. عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے, ہم عوام کے لیے وہ ہیں. سب سے مہنگا بجلی کا پرابلم ہے جس کو چیئرمین صاحب سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ناصر شاہ صاحب سولر پروگرام کے بڑی مہربانی آپ کی. دیکھیں ہماری پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے سارے پاکستان میں. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 2 دن پہلے وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کی, اس میں بھی جو بھی پاکستان کے عوام کا جو بھی عوام کی فائدے کے لیے تھی وہ باتیں کی کہ بھائی مہنگائی کا دور ہے, آپ جو ہے نا تنخواہ میں بڑھائیں تو 20 سے 30% تک وہ بھی بڑھ رہی ہیں ہماری حکومت سندھ میں. اس میں تو ہماری جو بجٹ ہے اس میں لوگوں کا فائدہ ہوگا. اسی لیے چیئرمین صاحب کی یہی کوشش تھی کہ سی ایم صاحب کو جو سی ایم صاحب آج بجٹ پیش کرے اس میں ہم زیادہ تر جو آن گوئنگ اسکیم ہے ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی نیو اسکیم نہیں لے رہے. تو یہ اچھی بات ہے, جتنی اسکیمیں آدھے میں رکی ہوئی ہیں تو وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس سال. اس میں عوام کو سندھ کے عوام کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ بھی عوام کے یہ جو بجٹ ہم پیش کرے عوامی دوست بجٹ ہے. لیکن ہماری وزارت ہے, میری اوقاف ہے اور زکوٰۃ, یہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس میں جو بھی ہماری تھی ہماری بھی, میں نے آپ کو کہا کہ پہلے جو ہماری آن گوئنگ اسکیم ہے اوقاف میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہی آن گوئنگ اسکیم ہے, کوئی نیو اسکیم نہیں رکھی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی بہتری آئے گی, آپ دیکھنا. بالکل بہتری آئے گی یہ کہنا ہے اراکین اسمبلی کا. ہم بات کر لیتے ہیں عاجز جمالی سے. عاجز, اراکین سندھ اسمبلی تو کہہ رہے ہیں بہتری آئے گی, لیکن اگر ہم بات کریں اس کی تنخواہ کی جو بڑھے گی اور 37,000 ہو جائے گی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی بیٹر لیونگ سٹینڈرڈ تو چھوڑیں, ایک لیونگ سٹینڈرڈ کو مینٹین کر سکے گا 37,000 روپے میں؟ جی دیکھیں, جہاں تک بات ہے کم سے کم اجرت کی, تو ویسے تو 37,000 روپے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں عجیب صورتحال یہ ہے کہ جو اس وقت رواں مالی سال کے دوران 32,000 مقرر ہے وہ بھی اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. اس وقت بھی اگر میں صرف صوبہ سندھ کی بات کروں یا میں شہر کراچی کی بات کروں, یہاں ہزاروں کی تعداد میں فیکٹریز ہیں جہاں پر لوگ 20,000 25,000 روپے پہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. مختلف اداروں میں لوگ کام کرتے ہیں, 25,000 روپے ان کی تنخواہ ہے, جو کچھ بھی نہیں ہے. جو 32,000 روپے ہے اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا تھا, اب 37,000 کر دیے گئے. قدرے بہتر ہے, چلے 5,000 روپے کا اگر سندھ حکومت نے ورکرز کی تنخواہ میں اضافے کا اعلان تو کر لیا, لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اس میں سب سے اہم بات اس میں امپلیمنٹیشن کا ہے. جو حکومت 37,000 بول رہی ہے, یہ 37,000 بھی کم از کم لوگوں کو ملنے چاہیے, وہ نہیں مل پا رہے. اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا کہ اداروں میں تنخواہ, جو سرکاری تنخواہ کا اعلان ہے, نجی ادارے, پرائیویٹ کمپنیاں اس پر عمل نہیں کرتی ہیں. یہ ایک اہم سوال ہے, جبکہ حکومت کے پاس ان تمام پرائیویٹ کمپنیوں کا ایک حل موجود ہے. جتنے بھی ادارے چلتے ہیں وہ حکومتی لائسنس کے ذریعے چل رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی فیکٹریز ہیں ان کو لیبر انسپیکٹرز چیک کرتے ہیں, یا مختلف اداروں کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے ادارے موجود ہیں. لیکن چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے جو یہ 37,000 یا 32,000 ہے اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا. حالانکہ یہ بھی بہت ہی کم ہے, اس سے زیادہ ہونا چاہیے, لیکن زیادہ کریں گے بھی صحیح, عمل نہیں ہوگا. اصل میں 37,000 روپے پہ عمل کر کے دکھایا جائے, یہ سب سے اہم بات ہوگی. جی بالکل, یہی سب سے اہم بات ہوگی. وسیم کا بھی رخ کر لیتے ہیں. وسیم, جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے, وفاق کا ہو یا صوبائی ہو, تو اس میں کچھ ایسے اسپیکٹس رکھے جاتے ہیں, پوائنٹس رکھے جاتے ہیں جو جاب کریشن کا سبب بنتے ہیں, ترقیاتی پروگرام رکھے جاتے ہیں. تو اس بجٹ میں ایسا کچھ ہے؟ آج بالکل صوبائی حکومت کے بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو صوبائی حکومت نے جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس کی مد میں بھاری بھرکم پیسے تو رکھے ہیں, یعنی کہ اربوں روپے اس میں جو ہے وہ رکھے ہیں. لیکن در حقیقت دیکھنا یہ ہے کہ اربوں روپے سے یہ منصوبے شروع بھی ہوتے ہیں, مکمل بھی ہوتے ہیں. یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اعلانات تو بہت کیے جاتے ہیں. وفاقی بجٹ میں بھی جو ہے وہ بڑے اعلانات کیے گئے تھے, لیکن اس میں بھی جو ہے وہ ریلیف مل سکا. تاجر برادری بھی رو رہی ہے, صنعت کار بھی رو رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو عام جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بھی رو رہا ہے.
इसी के साथ साथ अगर बात करें सनतकारों की, तो सनतकारों को ये कहना है कि बिलखुसूस नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर जो है फैसल मुइज़ का ये कहना है कि नॉर्थ कराची के जो सनती इलाका है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है इलाका है, क्योंकि यहाँ से 70% एक्सपोर्ट होती है। लेकिन इसके बरक्स यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेहतर नहीं है, पानी के मसाइल है, पानी खरीद के इनको जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, लेबर के लिए जो है पानी इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी की शदीद किल्लत है। टैंकर माफिया जो है वो हज़ारों रुपए के टैंकर उनको देती हैं, मनमानी कीमतें टैंकर माफिया की। इसी तरीके से टैंकर्स के हुसूल के लिए जो सरकारी सतह पर और जो वाटर बोर्ड के हुकाम हैं उनसे भी नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के जो सनतकार हैं उनकी बात हुई थी, एक फोकल पर्सन मुकर्रर करने की बात की गई थी, वो भी मुकर्रर नहीं हो सका। तो मुख्तलिफ जो चैलेंजेस हैं, मुख्तलिफ मसाइल के साथ इंडस्ट्री जो है वो चलाने पर मजबूर हैं। बिजली का मसला है, यहाँ पर बिजली का टैरिफ ज़्यादा है, बिजली की लोड शेडिंग का मसला है। रईस का असर जो है यहाँ पर जो गैस के जो टैरिफ हैं और गैस की जो लोड शेडिंग है उसने पूरी कर दी है। बिजली और गैस के साथ साथ पानी के मसाइल की वजह से भी जो है वो सनतकार परेशान है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर जो है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि जो फॉरेन बायर है वो अगर ऑफिस या फिर फैक्ट्री विजिट करने की जिद करता है या दिलचस्पी का इजहार करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा होता है कि शर्मिंदगी होती है कि गैर मुल्की जो बायर है, चाहे वो यूरोप का हो या फिर मिडिल ईस्ट का बायर हो, उसको जो है वो सनतकार अपनी फैक्ट्री विजिट कराने के लिए शर्मिंदगी महसूस करते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना ख़राब है। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, लॉ की सिचुएशन उससे भी ज़्यादा ख़राब है। बहुत शुक्रिया वसीम और आजिज़, आप हमारे साथ मौजूद थे। कुछ देर बाद हम आपको फिर ज्वाइन करेंगे।